So before we start pseudo force, let me ask you a sum. एक सिंपल सा सम कर लेते हैं फटाफट. हमने ये सम किया था पहले भी, but let me do it with our variables. So let's say this mass is some m1, this mass is some m2, ये m1 है and ये m2 है. This angle is alpha, this is beta. We asked what is the acceleration of the system. तो ये m1 यहाँ जाएगा. So let's say m2 is heavier, so this is a like this is a like this. कैसे मिलेगा a का वैल्यू? What was the short trick? It was net pulling force upon total mass. Correct? So you remember यहाँ पे क्या होने वाला है कि this is my x and this is my y. So you understand that mg will be like this, isn't it? This would be m2g. सही है ना? And you know that this is beta, this has to be beta. Correct? तो m2g cos, m2g sin. तो ये जो पुलिंग फोर्स यहाँ पर आने वाला है, the pulling force that will get here, that should be m2g sin beta. Is it making sense? Similarly, यहाँ पे भी because the pulling force will be m1g sin alpha. So what is the net pulling force? Net pulling force क्या होगा? यहाँ पे लिखा क्या होगा? This will be m2g sin beta minus m1g sin alpha upon m1 plus m2 simply. Correct है? If they ask you tension, so you can take any one FBD. You know that tension will be like this. This is T. This would be T. तो कोई भी एक FBD लेके हम जैसे यहाँ पे if you write the equation T minus m1g sin alpha will be equal to m1a. You know a का value. You can obviously get T का value as m1g sin alpha. Correct? m1g sin alpha plus m1a, and a का value you can take it from here. Substitute solve करो, आंसर आ जाएगा. Isn't it? किया था हमने ये सम. Okay. Can you give me same logic लगाया? Can you give me this answer? Apply the same logic and give me solution for this answer. And okay. एक मास यहाँ ले लेते हैं. एक मास यहाँ रख लेते हैं. एक मास यहाँ रख लेते हैं. We have three masses here. So this is m1, m2, m3. इसको alpha बोलो, इसको beta बोलो. Give me acceleration of the system and you can find tension also. यहाँ पे tension कुछ और होगा, है ना? यहाँ पे tension कुछ और होगा because this is some t and this is some t dash, है ना? Can you give me the acceleration? Tension.
सॉल्व. So if you use a net pulling force logic, you know that यहाँ से जो force आ रहा है, it is m3g. Complete force is used to pull the system. One second. Just a second. Yes, so this entire force is being used to pull the system. यहाँ पे you know that कि this component will be m2g sin beta and this component will be m1g sin alpha, right? Tension is kind of internal force here. This is t dash, this is t dash, this is t, this is t, है ना? टेंशन जो है वो सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स बन जाता है. इफ यू सी पुलिंग फोर्स जो सिस्टम को पुल कर रहा है नीचे की तरफ, इफ यू हैव दिस एक्सेशन एज ए, दिस विल बी ए एंड दिस विल बी आल्सो ए, राइट? तो जो पुल करने वाला जो फोर्स है वो डेफिनेटली क्या बोलते हैं, मास और उसके कंपोनेंट्स है, राइट? mg के कंपोनेंट्स है ना? तो आई कैन से दैट कि ए जो होगा दैट विल बी दीज टू आर पुलिंग along the string, तो दिस विल बी m3g प्लस m2g साइन बीटा, ये लोग पुल कर रहे हैं और ये अपोज कर रहा है, माइनस m1g साइन अल्फा द होल डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, करेक्ट? एंड इफ यू वांट टेंशन t डैश चाहिए अगर, ठीक है, तो यहाँ से भी मिल सकता है, करेक्ट? यहाँ पे दिस विल बी t डैश, करेक्ट? ये स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे टेंशन सेम होना चाहिए, सही है क्या? करेक्ट? तो यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन टू गेट t डैश व्हिच विल बी m3g minus t dash is equal to m3a. Net force is equal to mass into acceleration. So t dash will be simply m3g minus m3a. इससे t dash मिल जाएगा. If you want t, you can use this expression or this expression. तो t की वैल्यू कैसे मिलेगी? यहाँ वाला अगर इक्वेशन यूज करते हैं तो it will be t minus m1g sin alpha should be m1a. That means t will be m1g sin alpha plus m1a. तो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, isn't it? So look at this scenario. See, let's go to the concept pseudo force. Okay. Now see, generally when we are analyzing system, तो दो टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है या ऑब्जर्वर बोलते हैं उसको, ठीक है? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऑब्जर्वर, सिंपल टर्म्स में हम उसको ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, ठीक है? ऑब्जर्वर, ठीक है? ओके. इनर्शियल ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? एग्जांपल भी लेंगे. ओके. इनर्शियल मतलब ऐसा ऑब्जर्वर जो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में, बेसिकली नो एक्सेलरेशन, नॉन एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर. समझ में आया क्या? ठीक है. नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? ऑब्जर्वर विच इज एक्सेलरेटेड. अब इससे फर्क क्या पड़ता है, सुनो. और वी ऑब्जर्व कि जो एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है उसके लिए एनएलएम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता. मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली. ओके. यहाँ पे इज एप्लीकेबल. यहाँ पे मैंने ऐसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मतलब क्या एप्लीकेबल है? F इज इक्वल टू ma, जो अब तक करते आ रहे थे अपन कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो यहाँ पे इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए एप्लीकेबल है. अब तक हम लोग सिस्टम को एक बाहर के ऑब्जर्वर से, मतलब वी आर ऑब्जर्विंग द सिस्टम लाइक दिस, मतलब हम लोग रेस्ट पे है ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, ऐसा हो रहा है. समझ में आ रहा है क्या? तो हमारे पर्सपेक्टिव से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, जहां से मतलब हम रेस्ट पे हैं और सिस्टम सिर्फ मूव हो रहा है, राइट? व्हाट इफ वी आर आल्सो एक्सेलरेटेड? थिंग्स विल चेंज. ओके. जब हम भी एक्सेलरेट करते हैं तो डायरेक्टली एनएलएम यूज नहीं करते. वी विल सी दैट. आई विल शो यू द एग्जांपल आल्सो. यू विल अंडरस्टैंड दैट कि एनएलएम इज नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली. एनएलएम मतलब F इज इक्वल टू ma cannot be used directly. Okay. It will be used by considering something called as pseudo force. एक pseudo force ऐड करना पड़ता है. क्यों ऐड करना पड़ता है? तो एग्जांपल समझते हैं. लेट्स से एग्जांपल की समझो कि क्या बोलते हैं, तुम एक
एक कार्ट में हो या एक ट्रेन की बोगी है, समझ लो कुछ। एनी एग्जांपल यू कैन टेक, लेट्स से दिस इज सम बस और सम कार्ट और व्हाटएवर, एंड यहाँ पे वी हैव 3 ऑब्जर्वर्स, ओके 3 ऑब्जर्वर ले लो, ओके एक ऑब्जर्वर है जो खड़ा हुआ है यहाँ पे आराम से, एक है जो समझो बैठा है यहाँ पर, ओके एंड एक समझो यहाँ पे पेंडुलम है, इसका एग्जांपल लाइक दिस, ओके इसको ऑब्जर्वर ए बोलो, बी बोलो, ओके सो व्हाट यू अंडरस्टैंड कि समझो मतलब, ओके अगर ये कार्ट रेस्ट पे है तो सब कुछ सही है, मतलब ये पेंडुलम भी ऐसे रेस्ट में रहेगा और एवरीथिंग इज फाइन, बट इफ दिस कार्ट इज एक्सेलरेटेड विद सम एक्सेलरेशन ए नॉट, जैसे हमने देखो कार में जब तुम हो, अगर तुम हम भी हैंग ना कभी कुछ कुछ हैंग कर देते हैं हम लोग कार के, जहाँ पे वो वी हैव दैट बैक मिरर, ठीक है तो रियर व्यू मिरर पे हम कुछ लटकाते हैं राइट, जैसे तुम एक्सेलरेशन दबाते हो तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है कुछ भी लटका है वो पीछे ऐसा आता है राइट, ठीक है या हम भी ऐसे पीछे आते हैं, समझ में आया क्या, ठीक है तो ऐसे ही अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो ये जो पेंडुलम है तुमको ऐसे नहीं ऐसे दिखना चाहिए, ये जो ऑब्जर्वर ए और बी है दे विल फील दैट कि दिस पेंडुलम विल बिकम लाइक दिस फॉर देम, इजंट इट, बराबर ना, समझ में आएगा, उसको ऐसे दिखना चाहिए, एंगल पे दिखना चाहिए, समझो कि ये जो ऑब्जर्वर है ये समझो कि ना ये जो बी वाला ऑब्जर्वर यहीं पे इस एक्सीडेंट कार्ट में पैदा हुआ है, समझे क्या, ठीक है तो उसको कभी समझना ही नहीं कि ये ऐसे पीछे क्यों है, क्योंकि वो उसके हिसाब से इफ आई ड्रॉ रियल फोर्सेस यू विल हैव ओनली mg, है ना, वो mg है उसके पास और क्या बोलते हैं टेंशन है, बस बोथ द फोर्सेस आर वर्टिकल, मतलब ये अलोंग द स्ट्रिंग और वर्टिकल है, तो ये दो फोर्स बनाएंगे हम लोग अगर तो इसके वजह से ऐसा होता है कि ये ऐसा होना चाहिए बस mg और टेंशन लाइक दिस, इट शुड बी वर्टिकल राइट, इफ आई ड्रॉ द रियल फोर्सेस, ठीक है टेंशन और mg, तो आई फील कि ये नीचे ही रहना चाहिए, दिस गाय कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई दिस इज टेढ़ा, समझ में आ रहा है क्योंकि उसको तो जब से वो पैदा हुआ था ये इसको ऐसे दिखेगा राइट, समझ में आ रहा है अगर इफ इज बोर्न इनसाइड द कार्ड ओनली, ठीक है तो ही विल फील दैट ही विल ऑलवेज सी इट ऐसे ही, समझा, और उसको अगर हम न्यूटन्स लॉ से पढ़ाए भी, ठीक है तो क्या पढ़ाओगे कि हाँ सब कुछ वेट एक्ट कर रहा है बिकॉज़ ग्रेविटी इज पुलिंग समथिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड्स एंड देन टेंशन इज विल एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग लाइक दिस, करेक्ट, एंड दीस टू फोर्सेस, ऐसा कोई फोर्स नहीं जिसको इस तरफ लेके जा रहा है, सारे फोर्स को वर्टिकली खींच रहे हैं राइट, तो अगर ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो ये ऐसे जाना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, isn't it? तो रियल फोर्सेस से रिजल्ट नहीं आ रहा अपने को, अगर पॉइंट समझ में आया क्या, ठीक है, if you ask him to explain why this is at an angle theta he will not be able to explain that using the forces that I have taught you right now, अब तो क्या पढ़ाया, mg पढ़ाया, नॉर्मल डायरेक्शन पढ़ाया और टेंशन पढ़ाया, ठीक है तूने बना दिया, mg आएगा बिकॉज अर्थ पे, ठीक है टेंशन आएगा बिकॉज स्ट्रिंग है, नॉर्मल नहीं आएगा बिकॉज देयर इज नो सरफेस और पॉइंट इन कांटेक्ट, isn't it? तो ये दो फोर्स के हिसाब से ऐसा लग रहा ही नहीं कि ये टेढ़ा होना चाहिए, ऐसा ये स्ट्रेट होना चाहिए, समझ में आया क्या, तो ये जो भूतिया फोर्स है, ठीक है जो इसको इस तरफ लेके जा रहा है उसको बोलते हैं हम सूडो फोर्स, समझ में आ रहा है, सूडो फोर्स ऐसे फोर्सेस है जिसका इफेक्ट दिखता है आपको, समझ में आ रहा है, बट हम वो फोर्स रियल, इट्स नॉट अ रियल फोर्स, ठीक है बट व्हिच इज द इफेक्ट ऑफ इट, व्हाई वी आर सीइंग द इफेक्ट बिकॉज़ द ऑब्जर्वर, दिस ऑब्जर्वर हु इज बोर्न इनसाइड द कार्ड इटसेल्फ, ही इज मतलब इन एन एक्सटेंडेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो एक रेस्ट वाला ऑब्जर्वर नहीं है, देखो ये जो अगर कोई बाहर जो ऑब्जर्वर रहेगा, ठीक है ओके वो ऑब्जर्वर पता है कि सिस्टम एक्सटेंडेड है इसलिए पेंडुलम पीछे आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है वो ही कैन एक्सप्लेन दिस, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ऐसा, उसको क्या लगता है कि मैं रेस्ट पे हूं, समझा ना, यू अंडरस्टैंड, तुम कार में बैठे हो अगर तुमको क्या लगता है कि तुम रेस्ट पे हो, ठीक है तो वहां इसके रेफरेंस फ्रेम से ये एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है कि क्या बोलते हैं अनलेस आई कंसीडर समथिंग, अगर मैं ऐसे इमेजिन करूं कि भाई टेंशन और mg के अलावा कोई तो एक फोर्स है जो उसको धक्का मार रहा है, उसको जो दिख तो नहीं रहा है मुझे, ठीक है उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा है क्यों है, बट वो कोई तो भूतिया फोर्स है उसको जहां लेके जा रहा है, तब मुझे एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं, फॉर हिम इट इज अ गोस्ट फोर्स, isn't it? ठीक है इट्स अ इमेजिन्ड फॉल्स फोर्स, समझ में आ रहा है क्या, ग्रेविटी का रीजन है अर्थ खींच रहा है, टेंशन रीजन है स्ट्रिंग पे लगा हुआ है इसलिए, ठीक है यहां पे कौन धक्का मार रहा है, अगर पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, ठीक है बट इफ आई डोंट कंसीडर दैट आई विल नॉट बी एक्सप्लेन, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मतलब ठीक है तो मुझे क्या करना पड़ता है, बोलते ये तो रियल फोर्सेस पे एक्ट कर रहे हैं, साथ साथ में एक सूडो फोर्स है जो पीछे की तरफ लग रहा है जिसके से टेढ़ा हुआ है, ये कंसीडर करेंगे तो ही हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि टेढ़ा क्यों है, समझ में आ रहा है क्या, और वो किसके लिए ऐड किया मैंने, इसके लिए
ये ऑब्जर्वर बी के लिए समझ में आएगा. तो आई कैन से दैट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द पेंडुलम अनलेस वी कंसीडर अ सूडो फोर्स, अ फॉल्स फोर्स which seems to shift the pendulum. ठीक है. एंड व्हाई वी आर डूइंग दैट? बिकॉज द ऑब्जर्वर इज नॉट एट रेस्ट, इट इज एक्सेलरेटेड. हमेशा ऐसे करना पड़ता है हमको. एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी चलेगा. चमका थोड़ा सा. ठीक है. तो हम यही लिखते हैं, हम बोलते हैं कि वी कैन अप्लाई NLM ओनली इफ वी कंसिडर. ठीक है. तो वी हैव टू कंसिडर, मतलब वी हैव टू कंसिडर सूडो फोर्स. तो एक सूडो फोर्स इमेजिन करना पड़ता है. ठीक है. टू अप्लाई NLM. अब जब सूडो फोर्स की बात चल रही है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड फॉल्स फोर्स है, मतलब सच में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. बट इसको इसलिए इमेजिन किया बिकॉज ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटेड. तो आई लाइक फर्स्ट पॉइंट कि टू बी कंसिडर्ड इफ ऑब्जर्वर, ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सेलरेटेड. पहला पॉइंट. क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज उसका इफेक्ट दिखता है हमको. ठीक है. सेकेंड पॉइंट यू शुड नो कि अभी कोई फोर्स पढ़ रहे हैं तो उसका 3 चीज पढ़ना चाहिए हमको: वैल्यू, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. राइट. व्हाट इज द वैल्यू? सूडो फोर्स का वैल्यू होता है इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये फॉर्मूला है इसका. ठीक है. तो इसका मतलब देखो यहाँ पे. ठीक है. तो ये जो सिस्टम है, ये बस है, ये जो ऑब्जर्वर बी है वो A0 से आगे जा रहा है, तो मुझे सूडो फोर्स का वैल्यू कितना लेना चाहिए? इट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका FBD बता रहे हैं इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज A0. मेकिंग सेंस? ठीक है. सूडो फोर्स का वैल्यू क्या होता है? इट इज MAFOR. ये क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट whose FBD, ठीक है, वी आर मेकिंग. समझ में आएगा? जिसका हम FBD बना रहे. ओके. या अंडर कंसिडरेशन. ठीक है. ये क्या है? दिस इज ऑब्जर्वर्स एक्सेलरेशन, या इसको बोलना चाहिए नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर्स एक्सेलरेशन. समझ में आया? वैल्यू. डायरेक्शन, इट शुड बी ऑपोजिट टू AFOR. तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया था एक्चुअली. ठीक है. कि अगर सिस्टम इधर जा रही है, ठीक है, ऑब्जर्वर का एक्शन राइट में, तो सूडो फोर्स पीछे रहेंगे. तो पीछे नहीं है. समझ में आएगा? ठीक है. एंड लास्टली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट इन रोटेशनल मोशन. सेंटर ऑफ मास में रखते हैं, या तुम फिलहाल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो तो भी चलेगा. ठीक है. समझा? अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है तो हमको एक एडिशनल फोर्स देना पड़ता है. ठीक है. बिफोर यू राइट F = ma, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स. नहीं तो इंटरेस्ट ऑफ मोशन फेल हो जाएगा. ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सूडो फोर्स? m, जिसका हम FBD में उसका मास, a एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. ठीक है. उसको ऑपोजिट बनाना है और सेंटर ऑफ मास बनाना है. समझा गया? एग्जांपल लेते हैं और. ठीक है. यहाँ पे एक्चुअली दे कैन गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस. चलो मैं बाद में क्वेश्चन बना दूंगा. इसमें एंगल पूछ सकते हैं, तो विल मेक द क्वेश्चन लेटर. एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव a cart A. Okay. Let's say this one more cart B. There is one more person. ठीक है, C. And let's say this is moving with acceleration A1. This is moving with acceleration A2. This is moving with velocity V1 and V0. Okay. So you must understand, अगर C ऑब्जर्व कर रहा है A को, ठीक है, अगर C ऑब्जर्व कर रहा है, if C is the observer, for A, let's say, then will you consider pseudo force or not? Let's say this velocity is some 20 meter per second. Will you consider pseudo force or not? अगर C A को ऑब्जर्व कर रहा है तो pseudo force कंसिडर करेंगे क्या? करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक्सेलरेटेड नहीं है, इसकी कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है. योर ऑब्जर्वर हैज टू बी एक्सेलरेटेड. ठीक है. देन ओनली यू कंसीडर फोर्स. समझ में आया क्या? चल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन है क्या उसके पास? नहीं है. ठीक है. अगर कोई B बंदा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, इस कार्ट में,
अगर B इज द ऑब्जर्वर टू A, ठीक है, इफ B इज ऑब्जर्विंग A, देन शुड वी कंसीडर स्यूडो फोर्स? आंसर इज यस, तो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, जब B बनाएगा FBD तो वो क्या करेगा, देखो क्या करेगा, वो सूडो फोर्स ऐसे ऐड करेगा पीछे की तरफ, बिकॉज B का एक्सीलेरेशन किस तरफ है, राइट में, तो वो सूडो फोर्स कहाँ लगाएगा, लेफ्ट में, समझा क्या? वैल्यू क्या होगी उसकी, मास ऑफ A, बिकॉज A की FBD बता रहे हैं, ठीक है, पर एक्सीलरेशन किसका होगा, ऑब्जर्वर का, A2, समझा? जब B A का FBD बनाएगा तो वो बाकी सब सारे फोर्स से बनाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, जो बनाया सब बनाएगा, बट साथ में उसको एक सूडो फोर्स भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज B इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जर्वर, ठीक है। व्हेन यू आर एडिंग सूडो फोर्स, पॉइंट नंबर 1, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, m ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका FBD बना रहे हैं, ठीक है, A ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, एंड हैज टू बी ऑपोजिट टू योर A2, मतलब अगर ये वाला A इस तरफ हो या इस तरफ फर्क नहीं पड़ता, हम इसको हमेशा इसके हिसाब से बनाते हैं। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया? सूडो फोर्स किसके हिसाब से बन रहा है, ऑब्जर्वर के हिसाब से बन रहा है, समझ में आया क्या? अगर ऑब्जर्वर राइट में जा रहा है, सूडो फोर्स लेफ्ट में रहेंगे, इस ऑब्जेक्ट का कहां पे एक्सेलेरेशन उससे मैटर नहीं करता, अगर पॉइंट, ठीक है, ही इज डिसाइडिंग, ठीक है, वेयर शुड बी द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। डू यू अंडरस्टैंड दैट? थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बाकी धीरे धीरे एग्जांपल्स और लेंगे, ठीक है, पहले एग्जांपल और थोड़ा सा ले लेते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसने क्या बोला कि लेट्स से ये हमारा पेंडुलम है, मास m, ओके, स्ट्रिंग इज आइडियल स्ट्रिंग, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, अनब्रेकेबल, ओके। बोला कि ये जो पॉइंट है या जिस पे इसको हैंग किया है, उसको हम एक्सलेट कर रहे हैं A0 से, ऐसे लेके जा रहे हैं इसको आगे की तरफ, तो क्या होगा, ऑब्वियसली दिस विल गो लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा, ये कवर्स में एंगल थीटा है कि नहीं, जैसे बस में हुआ था वही होगा, ठीक है। तो पूछा है फाइंड दिस थीटा, थीटा पूछा है अपने को, समझ में आएगा कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तुम क्या करो कि तुम ऐसे ये जो सपोर्ट है उसको हम आगे ले जा रहे हैं, राइट, तुम सपोर्ट पे बैठ जाओ, ठीक है। तो जैसे तुम सपोर्ट पे बैठ जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारे लिए सपोर्ट क्या हो जाएगा, एट रेस्ट, है कि नहीं? जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर मूविंग कार में है तो हमको क्या होता है, कार रेस्ट में, बाकी सब लोग चल रहे हैं, राइट, तो ऐसे तो सपोर्ट बिकम्स योर ऑब्जर्वर नाउ, समझा ना, ठीक है। इज द सपोर्ट एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड, राइट, तो सपोर्ट बिकम्स अ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, इजंट इट? अगर तुम सपोर्ट में बैठे हो तो सपोर्ट चल रहा है कि रुक रहा है, एक्सेलरेटेड है, चल रहा है वो, ठीक है, तो वो बन जाएगा नॉन एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर। तुम जब सपोर्ट में बैठते हो तो यू बिकम अ नॉन एक्सेलरेटेड, सॉरी, यू बिकम एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर, माय बैड, ठीक है, बिकम्स एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर, राइट, है ना, क्योंकि ये चल रहा है तो ऑब्वियसली ये भी चलेगा, बट तुम्हारे हिसाब से तुम रेस्ट पे हो, तो तुम डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो, अब तुमको बोला FBD बनाओ पेंडुलम का, कैसे बनाओगे? तुम पहले बनाओगे टेंशन, वो स्ट्रिंग है, करेक्ट, फिर बनाओगे वेट mg, फिर क्या बनाओगे और, बिकॉज यू आर अ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर, ठीक है, तुमको ऐड करना चाहिए सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कैसे ऐड करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पे ऐड करेंगे, ठीक है, और तुम्हारा एक्सेलरेशन राइट में, तो सूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा, मास ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, या बॉब इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर व्हिच इज A0, चमका, ठीक है। नाउ दिस इज थीटा फॉर अस, ये थीटा हो जाएगा। अब क्या कंपोनेंट ले लो फटाफट, क्या है, टुवर्ड्स द एंगल, cos component, this is t cos away from the angle, so will you get this t cos theta, this will be t sin theta, सही है ना, this will be ma naught, this will be mg, बैलेंस करो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, t sin थीटा क्या हो जाएगा, ma naught, और t cos थीटा क्या हो जाएगा, mg, डिवाइड करो tan थीटा कितना मिलेगा, A0 by g, मिल गया आंसर। समझ में आएगा? एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, तो व्हाट यू अंडरस्टैंड कि सूडो फोर्स का फंडा हमको कहाँ कैसे यूज करना है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, एलिवेटर प्रॉब्लम सुना होगा तुम शायद। एलिवेटर में जब तुम होते हो, एलिवेटर या तुम ऐसे इमेजिन करो कि जब तुम रोलर कोस्टर पे होते हो, ठीक है, ओके, तो जब रोलर कोस्टर नीचे आता है, ठीक है, जब अचानक से बहुत तेज नीचे आता है, तो यू फील कि अपना वेट ही नहीं वो फील होगा, समझ में आएगा, ऐसा था कि कुछ गया हुआ था, वेट ही गया, यू फील काइंड ऑफ वेटलेस, ऐसा किसी जमीन ही खिसका दी तुम्हारी नीचे से,
ऐसा लगता है क्या रोलर कोस्टर में बैठेगा अपन, ठीक है। ऐसे जब बहुत तेज ऊपर जाता है, ठीक है, तो यू फील हैवी, ओके। तो दैट यू टू अंडरस्टैंड व्हाई। इसमें और भी अच्छे प्रॉब्लम है, पहले मैं एक बेसिक प्रॉब्लम लेता हूँ, फिर थोड़ा इसको एडवांस करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एलिवेटर अगर रेस्ट पे है, समझ एक वेइंग मशीन है यहाँ पे, ठीक है, जैसे वेइंग मशीन एंड यू आर स्टैंडिंग हियर ऑन द एलिवेटर, ओके, योर मास इज सम m, ओके, दिस इज एट रेस्ट। तो रेस्ट पे है अगर, तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्सन, इट इज mg, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन n, सही है, ये दो फोर्स है ना, ठीक है। देखो आवर फीलिंग ऑफ वेट, या बोलना चाहिए मुझे वेइंग मशीन जो मेजर कर रहा है वो क्या मेजर कर रहा है, mg मेजर कर रहा है कि n मेजर कर रहा है, व्हाट डू यू थिंक? वेइंग मशीन जो मेजर कर रहा है या हमको जो अपना वेट फील हो रहा है वो mg की वजह से हो रहा है कि n की वजह से हो रहा है? mg की वजह से कि n की वजह से? n की वजह से। तुम समझो, मतलब राइट नाउ व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस ग्राउंड, तो मुझे वेट इसलिए फील बिकॉज़ ग्राउंड के ऊपर मैं फोर्स एक्सर्ट ऑफ ग्राउंड पे फोर्स एक्सर्ट किया, ग्राउंड ने मुझे फोर्स एक्सर्ट दिया वापस। व्हाट इफ द ग्राउंड इज नॉट देयर? व्हेन आई एम डूइंग फ्री फॉल आई वोंट इवन फील, ठीक है, माय वेट, है ना। अगर ग्राउंड ही नीचे से निकाल दो तुम, तो मुझे अपना वेट फील होगा क्या? मेरा वेट मुझे इसलिए फील होगा बिकॉज़ नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा है इसके वजह से, ठीक है। तो ये याद रखो कि आवर फीलिंग ऑफ वेट, ठीक है, या जो तुम्हारा वेइंग मशीन मेजर कर रहा है, ठीक है, इट्स मेजरिंग द नॉर्मल रिएक्शन। इसकी वैल्यू अगर चेंज हो जाती है तो हमको वेट ज्यादा या कम लगता है। जब रेस्ट में है तो n की वैल्यू सिंपली mg है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ओके। बट जब ये एलिवेटर समझ लो ऊपर जा रहा है ए डॉट एक्सेलरेशन से, और ये तुम्हारा वेइंग मशीन है, तुम यहाँ पे खड़े हो, ओके, तब क्या होगा? mg नीचे ऐड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ऐड करेगा, है ना। But now you tell me कि if you're in the elevator, are you a inertial observer या non inertial? Non inertial because तुम accelerated हो, ठीक है, ओके। तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए मुझे? Pseudo force ऐड करना चाहिए, ठीक है, pseudo force acceleration के opposite, तो m a naught like this, चमका। And now if you balance, what do you get? You will get n का value as mg plus m a naught, मतलब n की वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? बढ़ गई। मतलब जब एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो यू विल फील मोर वेट, भारी फील होगा तुमको, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। सिमिलरली उसका उल्टा ले लो केस, ठीक, वन मोर केस यहाँ पे, ठीक है, योर वेइंग मशीन एंड यू आर स्टैंडिंग हियर, व्हाट इफ इट इज गोइंग डाउन? सेम लॉजिक, ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पे mg, यहाँ पे n, सूडो फोर्स किस तरफ? अब अपर बनाएंगे बिकॉज ये नीचे जा रहा है, तो इट विल बी m a naught, समझ में आया क्या? एंड देन व्हाट इज n का वैल्यू नाउ? It will be n plus m a naught is equal to mg, which means n की value will be mg minus m a naught. So see the n value has decreased. In fact, if a naught becomes g, n becomes 0. a naught g कब होगा? फ्री फॉल। अगर तुम फ्री फॉल कर रहे हो तो व्हाट इज योर एक्सेलरेशन? g ना। तो अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन g के बराबर जाए तो you will not feel any normal reaction. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, नो नॉर्मल रिएक्शन मतलब यू फील वेटलेस। सच में वजन कम हुआ है क्या? मास उतना ही है तुम्हारा, कुछ नहीं कम हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मास सब वैसे ही है, ठीक है, वो सिर्फ ऐसा हो रहा है कि हमको नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम वेटलेस फील कर रहे हैं। तो वेटलेसनेस मतलब वजन कम नहीं होता किसी का, ठीक है, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन विच इज गॉन। अगर इन द पॉइंट थोड़ा सा समझा ये सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। लास्ट वर्ड आई विल मेक हियर, ठीक है, देन विल डू वन मोर सम, पॉज करूंगा लिखने के लिए तुम्हारे लिए। बट ये सुनो कि देखो, कभी कभी ये डायग्राम देख के लोगों को क्या लगता है कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो वेट ज्यादा फील होगा, और लिफ्ट नीचे जा रहा है या एलिवेटर नीचे जा रहा है तो वेट कम फील होगा। सिंपल, ऊपर जा रहा है तो वेट ज्यादा, नीचे आया तो कम वेट। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और लोग रॉन्ग भी कर देते हैं, मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक क्या है इसमें जरा सुनो, ठीक है। अपवर्ड एक्सेलरेटिंग, ठीक है, मीन्स velocity is increasing in upward direction, correct? upward acceleration मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ तुम जा रहे हो तो तुम्हारी velocity बढ़ रही है ना। this is what is upward acceleration. It actually means that velocity is increasing in upward direction. समझा? You will get the same effect if your velocity is decreasing and you are going downwards. Upward acceleration is same as downward deceleration.
चमका की बाउंसर, ठीक है। अपवर्ड एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ, यू गेट द सेम इफेक्ट इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बट यू आर गोइंग डाउन। समझ में आया क्या? अपवर्ड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डाउनवर्ड डिसलेरेशन, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करके वापस पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा समझो। समझ में आया क्या? अपवर्ड एक्सेलरेशन इज सेम एज डाउनवर्ड डिसलेरेशन। तो अगर तुम नीचे जा रहे हो बट तुम्हारी स्पीड कम हो रही है तो भी तुमको वेट ज्यादा फील होगा। अपवर्ड जा रहे थे, ऊपर जा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, इज सेम एज नीचे जा रही है, वेलोसिटी घट रही है। समझा? इसलिए अब मोशन, ये मोशन है, एरो बनाया मतलब कहां जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि वेलोसिटी क्या हो रहा है। सेम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डाउनवर्ड डिसेलरेशन, सॉरी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दिया है, राइट, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। दिस मींस velocity is increasing in downward direction with the same effect if velocity decreasing in upward direction. समझा? ऊपर जाओ बट वेलोसिटी कम हो जाए तो सेम इफेक्ट दिखेगा। समझ में आ जाए? ऊपर जा रहे हो, लिफ्ट रुक रहा है, ठीक है, तो यू गेट द सेम इफेक्ट, यू गेट वेटलेसनेस। समझ में आ रहा है क्या? इट्स नॉट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू वेलोसिटी एज वेल। तो इफ यू आर गोइंग अपवर्ड्स the velocity is increasing, you feel more weight, but if you are going upwards the velocity is decreasing, you feel less weight, ठीक है। if you are going downwards velocity decreasing, you feel more weight, if you are going downwards and velocity is increasing, ठीक है, you feel less weight। समझ में आया? समझा क्या? ये जो एरो बनाया है मोशन की डायरेक्शन है और बाजू में लिखा है कि वेलोसिटी क्या हो रहा है। मेकिंग सेंस? डोंट मेक दैट मिस्टेक, जस्ट डोंट अज्यूम दैट ऊपर गया तो वेट बढ़ेगा, नीचे आया तो वेट घटेगा। दिस इज नॉट द राइट कॉन्सेप्ट। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? पक्का? तो ये लिख लो फटाफट, ओके, देन विल टेक वन मोर सम। So listen to me, this problem is based on pseudo force only, ठीक है। उसमें फंडा क्या देखो, समझ लो we have a very light frame, okay, have you seen those विंडो क्लीनर जो बहुत हाई स्काई स्क्रेपर्स में खड़े रहते हैं, है ना, जो क्लीन करते रहते हैं, तो व्हाट डू, वो ऐसे लटकते नहीं है, मतलब, ठीक है, वो एक फ्रेम के ऊपर खड़े होते हैं, मतलब, समझे क्या, ठीक है। तो फ्रेम का जो हिंज होता है वो कहीं ऊपर होगा और एक एंड प्रॉब्ली दे यूज इट इन फ्रॉम योर हैंड, उसको खींचते रहेंगे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं लोग, ठीक है, और जब पर्टिकुलर हाइट पे आ गए तो प्रॉब्ली दे विल टाई इट अप टू द फ्रेम इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? जनरली दिस फ्रेम इज एक्सट्रीमली लाइट। समझा? अगर तुमको समझ लो कि ऐसे ही लटकना है अगर, ओके, अगर कोई, इफ आई डोंट गिव दिस सपोर्ट, तो जो टेंशन रिक्वायर्ड होगा, लेट्स से इफ द मास इज 80 kg ऑफ दिस पर्सन, ओके, तो 80 kg का मास लग रहा है तो मतलब देखो ना टेंशन कितना लगेगा इसको, 800, राइट, तो T is 800, तो लॉट ऑफ एफर्ट। बट वही अगर हम एक फ्रेम लगा दे, लेट्स से द फ्रेम का वेट इज सम 10 kg, फ्रेम भी तो थोड़ा हैवी होगा, ठीक है, बट अगेन वी टेक अ लाइटर फ्रेम, अगर एक फ्रेम के थ्रू, लेट्स से दिस गाय इज हैंगिंग, ओके, चलिए इसने हाथ पे पकड़ा हुआ है इसको, ओके, तो ये देखो क्या होगा, लुक एट दिस वेरी केयरफुली, इफ आई कंसीडर दिस एज वन सिस्टम, ओके, तो वन सिस्टम लिया तो कितना 90 kg का हो जाएगा सिस्टम, बराबर ना, 80 kg प्लस 10 kg, एंड देन देयर आर टू टेंशंस लाइक दिस, तो यहाँ पे T और यहाँ पे T, दिस 90 विल गिव 900, तो टेंशन कितना मिलेगा तुमको, 2T विल बी इक्वल 900, तो टेंशन रिक्वायर्ड इज हाउ मच, 450, तो ऑलमोस्ट द एफर्ट बिकम्स हाफ टू गो अप। जैसे ऊपर जाना है अगर, तो पूरा खुद का पूरा वेट उठा के जाना पड़ता है अगर एक स्ट्रिंग रहेगा तो, बट इफ यू हैव अ फ्रेम लाइक दिस तो एफर्ट इज हाफ ना, आराम से आधे एफर्ट, 450 न्यूटन का एफर्ट लगाना है तो आराम से खींच सकता है खुद को ऊपर या नीचे छोड़ सकता है आराम से। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ फ्रेम्स आर रियली हेल्पफुल व्हेन यू आर बड़े हाइट पे हम काम कर रहे हैं या कोई अपने वेट को अगर ओवरकम करना इजीली, तो वी कैन यूज दिस कंसेप्ट। हमको क्वेश्चन क्या दिया है देखो, क्वेश्चन ये दिया है इसने, वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट यू विल सी, दिस इज होमवर्क पार्ट, you have to answer. Let's say there's a string and it's this hand, okay, frame जो तुम्हारा है, numbers वो लेते हैं 80 kg, this 10 kg, what they have given कि जो person है he is pulling the string ऊपर खींच रहा है वो, ठीक है, तो उसके से क्या रहा है, ये पूरा फ्रेम ऊपर जा रहा है, and they have given कि जो फ्रेम है उसका पूरा एक्सेलरेशन, जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, it is given some
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज इज पुलिंग इट डाउन, ठीक है, तो ये पूरा फ्रेम ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द मैन एंड फ्रेम। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब तुम उसको पूरा सिस्टम ले लोगे, मतलब इफ आई कंसीडर दिस एज अ सिस्टम, टेंशन विल बी 2t, वेट विल बी 900, है ना, एंड एक्सेलरेशन a जो तुमको दिया है, बरोबर, इससे तुमको क्या मिल जाएगा, टेंशन। बट उसने टेंशन नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है कि इफ यू लुक एट द एफबीडी ऑफ दिस पर्सन इटसेल्फ, सिर्फ और सिर्फ पर्सन का एफबीडी देखोगे अगर, ठीक है, तो आई एम नॉट राइटिंग पूरा कंप्लीटली, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि क्योंकि ये फ्लोर पे है तो इस पे एक नॉर्मल डायरेक्शन भी लगेगा, प्लस इसने स्ट्रिंग को पकड़ा टेंशन लगेगा, ठीक है, खुद का वेट लगेगा, है ना, एंड देन देयर सूडो फोर्स आल्सो बिकॉज़ ही इज एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, करेक्ट। हमको वो सब लगा के ये n का वैल्यू निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, समझा क्या, ठीक है। इफ यू पूरे इसको पूरे को एक सिस्टम ले लोगे अगर, ठीक है, देन यू गेट एफबीडी लाइक दिस, उससे तुमको टेंशन मिल जाएगा बिकॉज ए दिया है तुमको, समझा। पर हमको टेंशन स्ट्रिंग नहीं पूछा है, पूछा है कि इस पर्सन को फ्रेम से कितना नॉर्मल मिल रहा है, ठीक है, तो वो मिल जाएगा बिकॉज यू नो दैट इट्स ऑन द फ्रेम, तो एन विल बी अपवर्ड्स, उसका वेट डाउनवर्ड्स, टेंशन लगेगा बिकॉज ही इज होल्डिंग द स्ट्रिंग, ओके, प्लस देयर इज सूडो फोर्स एज वेल बिकॉज ही इज इनटू अ रेफरेंस फ्रेम व्हिच इज एक्सेलरेटेड, तो वो सब लगा के तुमको एन का वैल्यू मुझे देना है। समझ में आया, इट्स इजी प्रॉब्लम, ठीक है, एंड यू विल सी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन बुकलेट्स आल्सो, कर लो।